Hello students, I hope you are doing well. In the last videos we have discussed about the manure and fertilizer. That is the second practice which was being followed for crop production. After preparing soil, then we add manure and fertilizers. So in this after this in this manure and fertilizer we have discussed about what is the advantage of manure and what is the advantage of fertilizers. So today I am here with the topic that is leguminous crops, and this topic you have already studied in your previous classes in class 7, that what is leguminous crops. So basically leguminous crops are those crops which have the ability to fix atmospheric nitrogen to form nitrogen compounds, and these leguminous plants have those bacteria, that rhizobium helps these plants to help soil to fix the nitrogen in the soil, and they also helps in converting those nitrogen gas into nitrogen compounds. Okay, so these nitrogen compounds, what happens, these nitrogen compounds directly go into the soil and it improves its fertility. And for examples of these leguminous crops are, because in previous classes we have just studied about the leguminous crops, we don't know what are the leguminous crops. So here are some examples that what are leguminous crops. So leguminous crops are pulses, peas, beans, groundnut, grams, clover. These are called as a leguminous crops. And it's very easy to identify which is a leguminous crop without knowing that whether it is a leguminous crops or not, because leguminous crops does not need any kind of such kind of nutrients to grow. They grow in a small height, because we have seen the pea plants and all, which grows in a very like small height. It does not grow in very, like, it does not grow taller or something like that, so it does not need any such kind of nutrients. So that's why these plants are called as a leguminous plants. So even the planting of leguminous crops in a field, what effect does it create? The planting of leguminous crop in a field has the same effect as adding nitrogenous fertilizers in the field. So हमने बात की थी कि we used to add फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सो पोटेशियम होता है. सो ये सब जो मिनरल्स की जो बात कर रही हूँ, दीज मिनरल्स आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. दीज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. सो अब इसमें क्या है कि अगर सपोज इफ वी ग्रो अ लेग्यूमिनस क्रॉप, तो वी डोंट नीड टू put extra nitrogenous fertilizers in the soil to increase its fertility. तो उसमें भी हमारा क्या है कि वी आर सेविंग आवर मनी, वी आर सेविंग आवर लेबर. So that's why it's best to grow leguminous crop or leguminous plant instead of using nitrogenous fertilizers in the soil to increase the fertility of the soil. So here is a picture of these roots of those leguminous crops or leguminous plants, because we have studied that in leguminous crops there were the rhizobium, the bacteria called rhizobium, it was situated in the root nodules of the leguminous crop. So here are some small nodules you can see. So in these nodules, these rhizobium bacteria is being situated. Okay, then now we'll discuss about the crop rotation. This is a very important practice to improve the fertility of the soil. So basically this crop rotation means the practice in which the different types of crops, those crops can be considered as a leguminous or a non-leguminous crops, are grown alternatively in the same field or soil is called crop rotation. तो इसमें हम लोग का जो मीनिंग है यहाँ पे, द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस जो ऑल्टरनेटली ग्रो करते हैं. ऑल्टरनेट कभी अब तुमने देखा है कि जब भी हम लोग क्रॉप करते हैं, मतलब लाइक क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, अगर सपोज हमने एक सीज़न में राइस लगाया, एक सीज़न में हमने मेज़ लगा दिया, तो नेक्स्ट सीज़न हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ हल्का या छोटा मोटा कुछ क्रॉप्स लगा देते, जैसे कि पी प्लांट, पी की लाइक पी ग्रो कर दिया हमने, या पल्सेस लगा दिया, या हमने कॉटन लगा दिया. तो ये सब लगाने का रीज़न ये है कि एटलीस्ट, क्योंकि अगर हम लोग सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स को एक ही बार ग्रो करते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स नीड द सेम न्यूट्रिएंट्स, एंड
फिर क्या होगा कि अगर हम लोग कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, इट विल बी वैनिश फ्रॉम द सॉइल एंड हमारी प्रोडक्शन भी सही नहीं होगी. सो दैट्स वाई दिस प्रैक्टिस, क्रॉप प्रिपरेशन प्रैक्टिस इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. सो क्रॉप रोटेशन का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ अ प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, those crops can be leguminous and non-leguminous, are grown alternatively in the same field or soil, is called crop rotation. Then comes here, in crop rotation the cereals like paddy, maize, wheat, जब हम लोग उसको नॉर्मली ग्रो करते हैं बिकॉज हम लोग को ज़्यादातर डिमांड इन्हीं चीज़ की होती है, तो ऑल्टरनेटिवली हम लोग कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे कि पल्सेस, पीस, बीन्स एक्सेट्रा, in the same field to fix and to replenish the nitrogen in the soil and also to increase the fertility of the soil. So now what will be the, अगर हमने इतनी क्रॉप रोटेशन अगर इतना ही एसेंशियल है तो what are the advantage of this crop rotation? So क्रॉप रोटेशन का एक बेसिक एडवांटेज हम लोग ने देख ही लिया है कि it improves the fertility of the soil. Means the rotation of the crops improves the fertility of the soil by replenishing it with the nitrogen. क्योंकि अगर nitrogen is the essential mineral for the growth of the plant, this we all know from our previous classes. So nitrogen कौन फिक्स करता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया. तो इसीलिए हमें बीच में ऑल्टरनेटिवली हमें क्या ग्रो करना चाहिए, दिस लेग्यूमिनस क्रॉप्स और लेग्यूमिनस प्लांट्स, सो दैट सॉइल की जो नीड है, नाइट्रोजन की जो नीड है सॉइल को, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी रिप्लेनिश. एंड देन सेकेंड इज योर रोटेशन ऑफ क्रॉप्स सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. हमने पहले ही डिस्कस की कि अगर हम लोग लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में क्या कंटेन करता है, क्या कैरी करता है, दिस नाइट्रोजन, दिस फॉस्फोरस एंड पोटेशियम विच आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट्स. सो वो हमें ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट क्या कर लेगा, इट विल ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द soil and it will definitely increase the production of the food grains. Now comes your the third basic practice, that is called irrigation. So students, irrigation means what? Because all we know that कि crop अगर हमने पहले soil को prepare किया like from by using those method plowing, leveling and manuring, then हमने क्या किया, seeds को लगाया. सीड्स लगाने के बाद हमने क्या किया, उसमें मैन्योर डाला. बट एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर फॉर सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड वी नीड टू हैव अ वाटर इन अ डे. तो अगर हम ह्यूमन बीइंग को एज अ लिविंग बीइंग को अगर वाटर चाहिए तो प्लांट्स इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ लिविंग बीइंग. सो वाई नॉट प्लांट, तो प्लांट की भी नीड है, बेसिक नीड है वाटर, राइट, बिकॉज वाटर के थ्रू ही प्लांट्स को कई सारे मिनरल्स प्रोवाइड किया जाता है. सो वाटर इज एसेंशियल. सो इरिगेशन इज दैट मेथड through which a water can be supplied to crop plants in the fields. Okay, so now the definition for the irrigation will be the process of supplying water to crop plants in the fields is called irrigation. And अब देखा, अब बात आती है कि इरिगेशन किस किस तरीके से होता है. तो इरिगेशन कैन बी डन बाय टू मेथड्स. दो तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं. इरिगेशन मीन्स हम लोग वाटर सप्लाई कर सकते हैं क्रॉप प्लांट को या फील्ड में. तो वो मेथड है, एक तो हम ट्रेडिशनल मेथड से अप्लाई कर सकते हैं. ट्रेडिशनल मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके आते हैं ट्रेडिशनल मेथड. और ट्रेडिशनल मेथड वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि जो मेथड हम लोग नॉर्मल यूज़ में कर सकते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा मशीनरी या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सिंपल जो गाँव में लोग यूज़ करते हैं, दोज मेथड्स वी कॉल एज अ ट्रेडिशनल मेथड. एंड सेकेंड इज़ द मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड मतलब जिसमें हम बहुत चीज़ मॉडर्नाइज हो गया. मीन्स लाइक कि जैसे हमने सोइंग बाय हैंड्स एंड सोइंग बाय सीड ड्रिल कहा था, जिसमें सोइंग बाय हैंड को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड, एंड सोइंग बाय सीड ड्रिल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं दिस मॉडर्न मेथड. वाई? बिकॉज सीड ड्रिल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बट सोइंग बाय हैंड वो ट्रेडिशनल मेथड है जो अब भी कई लोग करते हैं.
अगर हम लोग नॉर्मल अगर अपने घर में करते तो उसमें हम लोग सीड ड्रिल की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही चीज़ है, वाटर सप्लाई करने के लिए भी तो अलग अलग तरीके, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड जो नॉर्मल अभी भी गांव में करते हैं, एंड मॉडर्न मेथड जिसमें बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। सो हियर इज़ द पिक्चर शोइंग कि इसमें पंप के थ्रू क्रॉप फील्ड में वाटर सप्लाई किया जा रहा है। सो दिस मेथड वी कंसिडर एज अ ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। एंड द सेकेंड पिक्चर शोज कि यहाँ पे तुम्हारा एक शार टाइप दिख रहा है, तो दिस शार शोज दिस कि इसमें हमारा कम पानी पूरा फील्ड को कवर कर रहा है। सो दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड। नाउ अब आता है कि दैट वाई दिस इरिगेशन इज नेसेसरी। सो जैसे हमने कहा कि इरिगेशन दैट इज दैट प्रोसेस फॉर सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड। तो इरिगेशन क्या है, मीन्स बेसिकली हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर क्रॉप प्लांट को वाटर ही नहीं मिलेगा तो हाउ इट विल ग्रो इनटू अ, इट विल लाइक इट विल प्रोड्यूस अ फूड ग्रेन, राइट। सो इसीलिए अब हम बात करेंगे कि दैट वाई दिस इरिगेशन इज नेसेसरी। तो इरिगेशन बिफोर प्लोइंग, देखो अगर हम लोग हमारा एक फील्ड है जिसमें हमने बहुत टाइम से कुछ नहीं किया, खेती नहीं की, लाइक वी हैव नेवर प्लो दैट फील्ड, तो वो बहुत ड्राई होता है। तो प्लोइंग करने से भी पहले हमें क्या होता है कि हल्का सा अपने फील्ड को क्या करना होता है, वी नीड टू इरिगेट लाइक सप्लाई वाटर, ताकि क्या हो जाए, सॉइल क्या हो जाए, सॉइल थोड़ा मॉइस्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, एंड फ्लो करने में भी हमें ईजी हो। सो इसीलिए लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि इरिगेशन बिफोर प्लोइंग द फील्ड्स makes the soil soft due to which the plowing of fields become easier। तो क्या करता है कि प्लो करने से पहले हमें फील्ड में थोड़ा सा वाटर सप्लाई करना होता है, सो दैट कि सॉइल क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। सेकेंड इज व्हाट, तो इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का मतलब क्या है कि सीड्स को सो करना, जर्मिनेट करना मीन्स जब सीड अपने और शूट्स में बदल जाता है, लाइक इट कन्वर्ट इनटू अ टाइनी सैपलिंग, तो उसमें को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। एंड जर्मिनेशन के लिए अगर देखो सीड क्या है, हमारा एक हार्ड लेयर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब भी सीड्स लगाते हैं, राइस लगाते हैं, तो हम लोग उस सीड को पहले सोक करके रखते हैं वाटर में। वाई सोक करने की वजह से, रीज़न ये है कि जो तुम्हारा सीड कोट होता है, seed coat becomes soft and it will easily what mix with the soil and makes the and then the process of germination will takes place। so इसीलिए irrigation is very much necessary to provide moisture for the germination of the seeds। then third necessary point is that irrigation is necessary for the absorption of nutrients element by the plant from the soil। this is the main thing। देखो हमने बात किया है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है एंड इट्स स्टोर इन द लीव्स, एंड लेकिन प्लांट को फोटोसिंथेसिस टाइम में वाटर की भी नीड होती है, एंड दैट वाटर इज बीइंग ऑब्जर्व बाय द सॉइल। एंड यही चीज़ है कि एंड सॉइल से जब वाटर ऑब्जर्व होता है तो प्लांट को जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी मिनरल्स चाहिए होता है, वो मिनरल्स वाटर के थ्रू ही अब्जॉर्व किया जाता है एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसीलिए इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द absorption of nutrient element by the plants from the soil। then the water supply to the crops during irrigation protects the crop plant from hot air current as well as the frost। फ्रोस्ट का मतलब क्या है कि जब कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, लाइक व्हेन द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 0 डिग्री, तो व्हाट विल हैपन कि सब क्या हो जाए, फ्रीज हो जाता है, फ्रोस्ट हो जाता है, जम जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर सपोज वाटर सप्लाई करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो वो क्या होगा कि क्रॉप प्लांट को हम हॉट एयर से भी बचा सकते हैं, लाइक लू से, एंड इवन वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अ क्रॉप प्लांट फ्रॉम गेटिंग फ्रॉस्ट। So these are the points which shows that why irrigation is necessary।
नाउ वन ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स. अब आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इरिगेशन इरिगेशन ऐसे कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि एंड उसी फैक्टर्स पे हमारी क्रॉप की ग्रोथ होती है. सो देयर आर बेसिकली 3 फैक्टर्स. दोज आर, पहले हमें देखना पड़ता है नेचर ऑफ द क्रॉप, कि हम लोग कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं, राबी क्रॉप लगा रहे हैं या खारिफ क्रॉप लगा रहे हैं. बिकॉज अगर हम लोग खारिफ क्रॉप लगा रहे हैं तो उस समय हमें वाटर सप्लाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती. वाई? बिकॉज खारिफ क्रॉप्स आर बीइंग सोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एंड रेनी सीजन में हमें इतनी इरिगेशन प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वाटर विल बी अवेलेबल इन द फील्ड. सेकेंड गोज फॉर दी नेचर ऑफ द सॉइल. अब हमने नेचर ऑफ द सॉइल की बात की बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल. हमने सॉइल पढ़ा है, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल एंड वेरियस अदर सॉइल. तो इस अलग अलग टाइप के सॉइल में, जैसे हम लोगों ने सैंडी सॉइल पढ़ा था, सैंडी सॉइल में क्या क्रॉप की ग्रोथ हो सकती नहीं, बिकॉज दोज आर वेरी सॉफ्ट एंड उसमें वाटर जब भी अगर हम लोग वाटर क्या होता है, इट गेट अब्जॉर्ब वेरी क्विकली. तो इसलिए हम लोग सैंडी सॉइल में ग्रोथ नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्रॉप की ग्रोथ नहीं कर सकते. सो इसीलिए इसमें लिखा है कि बेस्ट सॉइल फॉर द क्रॉप ग्रोथ इज द क्ले सॉइल, बिकॉज वो क्या होता है कि इट अब्जॉर्ब्स द वाटर एज वेल एज द it is good for the growth of the crop. And then next is your season. सीज़न से बात आती है कि रेनी सीज़न है या विंटर सीज़न है, बिकॉज उन दोनों सीजन्स के ऊपर ही हम क्रॉप टाइप्स लाइक डिसाइड करते हैं, लाइक खारिफ क्रॉप्स लगाना है या राबी क्रॉप्स लगाना है. नाउ दीज आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. तो हमने देखा है कि हमारे इंडिया में कई सारे अलग अलग सोर्स है लाइक वाटर सप्लाई के, जैसे कि कैनल हो गया है, चेन पंप हो गया है, देन योर दिस ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, तुम्हारा वेल हो गया है, नहर जिससे हम लोगों ने रिवर ले लिया, ट्यूबवेल ले लिया, डैम्स ले लिया, पॉन्ड्स ले लिया, लेक्स ले लिया. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. एंड सबसे मेन सोर्स क्या है, एंड दैट इज़ द रेन. रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन ऑफ द क्रॉप्स. एंड अगर सपोज डैम्स वगैरह में या इन कैनल्स वगैरह में, तो हम डैम से, रिजर्वियर से हम लोग वो स्टोर करते हैं. लेकिन कहीं कहीं अगर कभी शॉर्टेज होता है तो इन इन जगहों में भी कौन सप्लाई करता है वाटर? द रेन. द रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन द what world, or even in India. We are talking about the India, so we can say India. So now the two methods of irrigation. First we will discuss about the traditional methods of irrigation. So traditional method of irrigation में क्या क्या आएगा मोड, जिसको हम लोग पुली सिस्टम बोलते हैं. पुली सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हम लोग पुली के थ्रू वेल से हम लोग जब पुली के थ्रू ही पानी हम लोग क्या करते, इन आउट करते हैं, तो दैट सिस्टम वी कॉल एज अ मोड. क्योंकि देखा होगा कि बहुत से फील्ड में अभी भी वेल्स वगैरह होते हैं, एंड उन वेल्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं. देन कम्स योर द चेन पम्प. चेन पम्प आप इस सेकंड फिगर में देख रहे होंगे कि चेन पम्प क्या होता है कि एक पुली व्हील लगा देते हैं, उनमें ऐसे कुछ कंटेनर्स डाल देते हैं. जब वो रोटेट करता रहता है, वो क्या करता है, एक एक करके वो कंटेनर पानी भरता रहता है, एंड वहाँ से एक चेन लगा देते हैं, लाइक एक पाइप लगा देते हैं. उन कंटेनर्स से वो पाइप में क्या होता है, वाटर को ड्रॉप करते हैं, एंड देन इट गोज टू द फील्ड. सो दैट मेथड वी कॉल एज अ चेन पम्प. देन थर्ड इज धेकली. धेकली भी तुम्हारा वेल का ही इसमें यूज़ होता है, जिसमें हम लोग वही कि एक हैवी वेट लगा देते हैं. इट्स लाइक अ पुली सिस्टम, बट पुली में क्या है कि हम पुल करते हैं, बट इसमें हमें पुल करने की जरूरत, इसमें हम लोग एक लाइक डंडा लगा देते हैं, एंड उसके लास्ट एंड पे हम एक हैवी वेट डाल देते हैं, एंड उसके फर्स्ट में एक बकेट, जिससे हम लोग वाटर को कैरी कर सकते हैं, एंड देन वी कैन ड्रॉप इट पुट इट डाउन इन द फील्ड. एंड लास्ट इज योर राहत, दैट इज कॉल्ड लेवर सिस्टम, जिसमें हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है, एंड इट इज सिमिलर लाइक अ चेन सिस्टम, चेन पम्प. So now next is the modern methods of irrigation. Nowadays people use these methods of irrigation, these two methods of irrigation. Why? Because these are very cheaper, and even it saves lots of water. So those two methods are the sprinkler system and the drip system.
स्प्रिंकलर सिस्टम से हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि जिसमें स्प्रिंकल होता है. स्प्रिंकल मीन जैसे बारिश की बूंदे स्प्रिंकल हो रहा है, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम. एंड सेकेंड इज अ ड्रिप सिस्टम. ड्रिप से भी वो है कि हम लोग एक एक ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम लोग अगर वाटर सप्लाई करेंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम. अब इन दोनों ही मेथड्स में देखो कि हमारी वाटर बहुत सेव हो जाएगा, एंड प्लस इवन हर एक प्लांट को इवनली वाटर सप्लाई होगा. बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि कहीं अगर सपोज तुम्हारा लैंड अनइवन है, तो तुम्हारा वाटर क्या होगा, हर जगह या इक्वल उसमें फ्लो नहीं करेगा. बट इन स्प्रिंकलर इट विल गो मूव्स टू एवरी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द field, and each and every crop will receive the water. Then in the modern irrigation method, we'll discuss the first method, that is the sprinkler system. Sprinkler system is basically is a main pipeline जिसमें is laid in the fields, and it is laid perpendicular pipes having rotating nozzles. Nozzles क्या होता है, जो हेड होते हैं ना, जो हमारे घर पे भी शार्क के जो वो, उसको ही हम लोग नोजल्स बोलते हैं. वो उसको लाइक लोकेट कर दिया जाता है, सो दैट, और वो क्या होता है, रोटेटिंग फॉर्म में होता है. मतलब अगर वाटर प्रेशर बनता है तो वो क्या होता है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, एंड रोटेट करने के टाइम में क्या होता है कि इट स्प्रेड्स वाटर इवनली ऑन दी होल सरफेस. एंड एट द उस नोजल को कहाँ लोकेट किया जाता है, द टॉप, एंड जॉइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या है कि वो घूम के एक पूरे रेगुलर इंटरवल में एक सर्कल कंप्लीट करते, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, एंड देन अगेन, सो इसलिए हम लोग उसको रेगुलर इंटरवल कह रहे हैं. एंड देन सेकेंड पॉइंट इज व्हेन वाटर फ्रॉम दिस ट्यूब वेल इज अलाउड टू फ्लो टू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर. जब अंडर प्रेशर में क्या होता है कि द वाटर क्या, इट विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, एंड देन वाटर गेट्स स्प्रिंकल ऑल ओवर द क्रॉप प्लांट एज इफ इट लुक्स लाइक अ रेन. देन मोर स्प्रिंकलर सिस्टम हमारा ज़्यादा बेनिफिशियल कब है, जब हम लोग उसको अनइवन लैंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड इवन फॉर द सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल को भी अगर हमें थोड़ा सा मॉइस्ट करना है, तो वी कैन यूज़ दिस मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम. एंड नाउअडेज वी कैन सी दिस काइंड ऑफ मेथड इज बीन यूज्ड इन एवरीवेयर. देन दिस द पिक्चर शोन द स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें पाइप क्या है, इट वॉज बीइंग लेड डाउन इन द फील्ड, एंड उसके ऊपर ही हेड टॉप पे ही क्या है, एक नोजल लगा दिया जाता है. सी दिस काइंड ऑफ नोजल इज बीन लाइक पुट इन दैट पाइप, एंड जो क्या करता है, इट रोटेट्स इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. देन सेकेंड मेथड इज द ड्रिप इरीगेशन. सो ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है कि ड्रिप से ही हमें टर्म से पता चल रहा है कि हमें ड्रिप बाय ड्रिप या ड्रॉप बाय ड्रॉप, हम लोग जब प्लांट को प्रोड्यूस, इवन हमने देखा अपने स्कूल में ही कि पाइप सिस्टम, एंड पाइप में हमने होल दे रखा है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि हर एक प्लांट को इक्वल जितना उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव हो रहा है, एंड जिससे वो अपना ग्रोथ भी उसका लाइक प्रॉपर हो रहा है, एंड देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर इन इट. सो ड्रिप इरीगेशन में क्या है, इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स में बहुत लाइक नैरो फॉर्म में उस पाइप्स को लगाया जाता है विद, और उन पाइप्स में क्या है कि हम लोग छोटे छोटे होल्स कर देते हैं, एंड इन द फील्ड, एंड व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू दिस नैरो पाइप, जब वाटर फ्लो होता है तो क्या होता है, वो उन होल से वाटर विल सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर प्लांट. एंड ये भी नहीं कि देखो, हम लोग अगर हमें वाटरिंग ही करनी होती है, तो हमें वाटरिंग कहाँ करनी चाहिए, और यू शुड वाटर ऑन द रूट्स ऑफ द प्लांट, नॉट ऑन द टॉप. वाई, बिकॉज शूट को इतनी वाटर की ज़रूरत नहीं जितनी उसकी रूट्स को, बिकॉज रूट्स विल ऑब्जॉर्व द वाटर मिनरल्स. तो इसीलिए ड्रिप मेथड में क्या है कि डायरेक्टली वाटर किसको सप्लाई किया जाता है, फ्रॉम टू द रूट्स ऑफ द प्लांट, एंड दिस वाटर इज ऑब्जर्व बाय द सॉइल इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स, एंड देन plants utilize those water. Then what will the advantage of the drip irrigation? अगर हम लोग दोनों मेथड को कंपेयर करें, स्प्रिंकलर मेथड एंड द ड्रिप इरीगेशन, तो विल प्रेफर द ड्रिप इरीगेशन. वाई, बिकॉज द ड्रिप इरीगेशन में वेस्टेज कम होता है वाटर की. सो फर्स्ट एडवांटेज इज द ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. मतलब प्लांट को जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, नॉट कि एक ही साथ हमने उसको रिलीज़ कर दिया. सो इस तरीके से क्या होता है कि वाटर हमारा वेस्ट नहीं होता है, तो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल इन बाय दिस ड्रिप सिस्टम.
सेकेंड इज़ द ड्रिप सिस्टम मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर. मतलब हमें ऑल्दो वी नीड लॉट्स ऑफ वाटर इन फॉर एग्रीकल्चर, बट अगर स्कैसिटी है वाटर की तो वी शुड फाइंड आउट सम वेज टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर. तो ड्रिप सिस्टम से हम जो वेस्टेज होता है वाटर की ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, तो उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि पाइप्स कैसे उसको लोकेट किया जाता है. एंड सी देयर वे होल्स वे बीइंग मेड इन दिस पाइप, एंड उस होल से क्या है कि ड्रिप बाय ड्रिप डायरेक्टली रूट को वाटर सप्लाई किया जा रहा है. सो आज यही ख़त्म करते हैं. सो टुडे आई जस्ट फिनिश इन ओवर हियर. सो आई होप कि इस मेथड दिस इरिगेशन मेथड को आपको समझ में आया होगा. एंड व्हाट आर द methods of irrigation and why this irrigation is being necessary, and traditional method and modern method में कौन से ways किस तरीके से हम लोग water supply कर सकते हैं. So if you have any query regarding this topic, you can directly comment on the comment box. And always complete your work and show your work regularly to your subject teachers. Thank you.